Today we are going to understand the last type of question which we can solve from dimensional analysis technique. That is, when fundamental quantities which are mass, length and time are replaced with some other quantities and you are asked that solve this problem in a system in which fundamental quantities are not mass, length and time, but they are given quantities to you, and now find dimension of any quantity based on the new set of fundamental quantities, right? So we will understand how to solve these problems through the problem itself. The first problem I am taking from AIPMT 2014, in which it is given that force, velocity and time are the new fundamental quantity set. And you have to find dimension of mass, which was earlier a fundamental quantity. Getting this point that force, velocity and time are fundamental units, and you have to find dimensions of mass in this new set of fundamental quantities. So we can solve this problem in two different techniques or methods. The first technique is simple, and that can be applied with a simple question in which complication is not there. For example, force, velocity and time are fundamental quantities, and you are asked to find fundamental dimension of mass. So find a relation in which you can relate mass with force, velocity and time. Listen to me again. You find a relation in which you can relate force, velocity, time with mass. Like in this case, if you write the formula of force, that is mass into acceleration, then write acceleration as velocity upon time, change in velocity upon time interval. Now velocity, leave it as it is, force as it is, time as it is, because here F, V, T are the fundamental quantities. मास लेफ्ट साइड में ले आओ और फोर्स को इधर ले आओ, है ना. देखो हमको मास एफ वी टी के टर्म्स में सिर्फ फॉर्मूला लिखते ही मिल गया. तो मास को एक साइड में ले आए, बाकी क्वांटिटी सेकंड दूसरी साइड में ले आए. एंड डायमेंशन ऑफ मास कैन बी रिटन एज डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ टाइम एंड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. If force, time and velocity itself are the fundamental quantities, then we can write it directly as F to the power 1, T to the power 1 and V to the power minus 1, and question is solved. The dimension of mass in the new set of fundamental quantities. लेकिन हर जगह इतना छोटा आंसर पॉसिबल नहीं होता है. कई बार हम इस तरीके के क्वांटिटीज़ को रिलेट नहीं कर पाते हैं. Then we will follow the regular method. What is regular method? They are saying that force, velocity and time are fundamental quantities and represent the dimension of mass in these terms. तो हम कहेंगे कि let the mass depends upon force to the power A, velocity to the power B and time to the power C. हम ऐसा काम कर चुके हैं इससे पहले. तो मास का जो डायमेंशन है वो तो कैपिटल एम हो जाएगा. फोर्स का डायमेंशन, जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ना फोर्स का, उसको यहाँ रिप्लेस कर दो टू द पावर ए. वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला टू द पावर बी. टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड पावर सी. के तुम्हें याद है डायमेंशन लेस रहता है. अब मास की पावर यहाँ पर सिर्फ ए ही है. देखो लेंथ की पावर हो गई ए प्लस बी, टाइम की पावर हो गई -2a माइनस बी और प्लस सी. ठीक, तो हमने पावर्स जो है वो तीनों क्वांटिटीज़ की अलग अलग लिख ली. अब लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन है m, तो a की वैल्यू तो 1 होनी चाहिए अगर दोनों साइड में डायमेंशंस को इक्वल होना है तो, और वो तो होना ही है अगर बीच में इक्वल लगा हुआ है. इधर की क्वांटिटी और इधर की क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होना चाहिए. ये जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चंस किए थे, बिल्कुल वही पैटर्न है. a प्लस बी को 0 और -2a माइनस बी प्लस सी को भी 0 होना चाहिए.
तीनों को सॉल्व करके हम ए, बी और सी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और अपने आप हमें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एम फिर यहाँ से मिल जाएगा। ए, बी और सी की वैल्यूज़ अपनी अपनी पावर्स की जगह रख देंगे इस तरीके से। तो ये दो तरीके हैं, आपको देखना होगा कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से इजीली सॉल्व हो रहा है। अगर सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है कि रिलेशन लिखने से और एक दो लाइन में आंसर आ रहा है, वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन फॉलो द रेगुलर स्टेप्स। दूसरा क्वेश्चन भी AIPMT 2015 का है। इस तरह के क्वेश्चंस मेंस और नीट में काफ़ी पॉपुलर है। दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फाइंड डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो देखो यहाँ कैसे कर रहा है। यहाँ भी हम दो मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं। एक मेथड हम ट्राई करेंगे कि क्या छोटा मेथड हो सकता है। तो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन को रिलेट करने वाला फॉर्मूला है सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी अपॉन चेंज इन एरिया। ठीक, तो अब देखो इससे हम कोशिश करेंगे कि सरफेस टेंशन को हम इन क्वांटिटीज में कौन कौन सी, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम, इन तीन क्वांटिटीज के टर्म्स में हम सरफेस टेंशन को एक्सप्रेस कर सके। तभी तो हम सरफेस टेंशन के डायमेंशन को इन तीन के डायमेंशन में एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो सरफेस टेंशन के इस फॉर्मूले में तुम देखो कि एनर्जी तो आ रहा है, दिस इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया। अब वेलोसिटी और टाइम लाना है। तो हमने क्या किया, क्योंकि सरफेस एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, तो सरफेस एनर्जी का डायमेंशन हमने ई लिख दिया, एरिया का डायमेंशन L2 है ना। अब टाइम यहाँ नहीं है, L तो एरिया से आ गया और हमें पता है कि वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1, तो यहाँ L विथ पावर 2 है। तो हमने क्या किया कि t की पावर 2 को मल्टीप्लाई किया और t की पावर 2 को डिवाइड किया। तो ये दो डायमेंशन हमने इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक, ऊपर भी और नीचे भी। तो अब देखो एनर्जी की डायमेंशन आ गई, L⁻² अपॉन T⁻², यानी वेलोसिटी डिनोमिनेटर में आ गया और एक ये T⁻²। तो अब वो तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज यहाँ पर आ गई। तो हमने कहा कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन EV⁻², T⁻² होगा। अगर हमारे दिमाग में ये ट्रिक नहीं हिट करे तो हम सीधे सीधे अपना नॉर्मल मेथड ले सकते हैं कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन के A पावर, वेलोसिटी की पावर B और टाइम की पावर C पे डिपेंड करता है। सो सरफेस टेंशन डायमेंशन कैन बी रिटन एज के डायमेंशन ले से ध्यान रखना है। सरफेस टेंशन का डायमेंशन हमको पता है कि MT-2 है, ना याद हो तो उसी जगह पर कॉपी पर राइट हैंड साइड पर लाइन ड्रॉ करिए और सरफेस टेंशन का डायमेंशन वहीं पर कैलकुलेट करिए। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, सरफेस टेंशन के डायमेंशन को रिप्लेस करोगे एनर्जी के डायमेंशन को, वेलोसिटी के डायमेंशन को और टाइम के डायमेंशन को। इसके बाद आप M, L और T की पावर्स को सिंप्लीफाई करके लिखोगे और फिर कंपैरिजन करोगे दो साइड से, तो आपको A, B और C की वैल्यूज़ मिल जाएंगी और आप डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन को एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के डायमेंशन में नोट कर पाओगे। क्लियर हो रही है बात बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज फ्रॉम नीट 2016। सो यू कैन ईजिली फाइंड कि इस तरह के क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिशन्स में कितने फेवरेट हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एंड नाउ एक्सप्रेस द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन टर्म्स ऑफ दीज। तो अब तुमको ये जो छोटा मेथड है ना कि एक रिलेशन ढूंढ लेना, वो नहीं पॉसिबल है। तो अभी हम प्रॉपर मेथड से करेंगे कि लेंथ की डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट की पावर A, स्पीड ऑफ लाइट की पावर B और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पावर C पर डिपेंड करती है। तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले से इन डायमेंशंस को रिप्लेस करेंगे और इनकी पावर्स का यूज़ करते हुए मास, लेंथ और टाइम की पावर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। और इसके बाद लेंथ की डायमेंशन L लेफ्ट साइड में और M, L और T की पावर्स को राइट साइड में कंपेयर करेंगे
और 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी हमको। देखो ये 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी हमको। इन्हें सॉल्व करेंगे तो C और फिर B और फिर A तीनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी। हमेशा ध्यान रखो रिप्रेजेंटेशन में जो मेथड अडॉप्ट किया है उसको बहुत गौर से देखो। एग्ज़ाम कॉपी में आपको रिप्रेजेंटेशन अपना इसी तरह से रखना है बोर्ड में। जब आपकी तीनों इक्वेशंस बन गई तो जैसे जैसे वैल्यूज़ आती गई आप उनको बॉक्स में हाईलाइट करते जाइए और उसके बाद ए बी सी की वैल्यूज़ आप यहाँ ऊपर ले आकर रख दीजिए। तो एल की डायमेंशन एच जी और सी के टर्म्स में मिल जाएगी आपको। इसके अलावा दूसरा ये तरीका है, अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक करे तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा रिलेशन ढूंढना गिवन क्वांटिटीज़ में आसान नहीं होता है। तो अगर एकदम से स्ट्राइक नहीं करे तो आप प्रॉपर मेथड को फॉलो करिए। ये ध्यान रखो कि राइट साइड में लाइन ड्रॉ करके जिनका डायमेंशन आपको याद नहीं है उनको उसी जगह उसी पेज पर कैलकुलेट करके दिखाओ और फिर उनका यूज़ इधर करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में उन्होंने कहा कि सरफेस टेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लैंक्स कांस्टेंट नीट 2019 में सरफेस टेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लैंक्स कांस्टेंट ये जो है फंडामेंटल यूनिट्स हैं एंड फाइंड डायमेंशनल फार्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला मान लिया कि सरफेस टेंशन की पावर a, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पावर b और प्लैंक्स कांस्टेंट की पावर c से पर डिपेंड करता है। इनके डायमेंशनल फार्मूले रिप्लेस किए, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला रिप्लेस किया, इनको एम एल और टी के फॉर्म में सिंप्लीफाई किया और कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने के बाद आपको 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी। इन 3 इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ए, बी और सी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ये आप सॉल्व करो और अगर प्रॉब्लम आती है देन यू कैन पॉज वीडियो एंड यू कैन चेक योर सॉल्यूशन। और उसके बाद आप ए, बी और सी की जो वैल्यूज़ मिली हैं उनको डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पी में जो पावर्स मानी थी उनकी जगह रखो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, 19 की ही किसी और मीटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें उन्होंने फंडामेंटल यूनिट्स कही थी कि स्पीड, एक्सेलरेशन और फोर्स हैं और डायमेंशनल फार्मूला यंग्स मॉड्यूलस का निकालने को कहा था। तो अब यंग्स मॉड्यूलस का जो डायमेंशनल फार्मूला है जो एम एल और टी के टर्म्स में है वो आपको याद होना चाहिए कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्योंकि डायमेंशन लेस होता है तो स्ट्रेस के जो या कहो कि प्रेशर के जो डायमेंशंस है वही यंग्स मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के डायमेंशंस है वो यहाँ रखें और जो स्पीड है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है उनकी पावर्स राइट साइड में लिख दी कि इन पावर्स पर यंग्स मॉड्यूलस की क्वांटिटी डिपेंड करती है। इनके फॉर्मूले रिप्लेस किए डायमेंशनल, एल, एम और टी के पावर्स की सिंप्लीफाई किए, कंपेयर किया और आपको 3 इक्वेशंस मिल गई। 3 इक्वेशंस को सॉल्व किया आपने तो आपको ए, बी और सी भी मिल गया। ठीक, और जब आपको ए, बी, सी मिल गया तो आपने सिंपली यंग्स मॉड्यूलस के इनिशियल स्टेप में जो आपने पावर्स माने थे उनकी जगह पर उन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया। रेगुलर प्रैक्टिस में भी इस तरीके से जो आंसर्स आए उनको हाईलाइट करना नहीं भूलना, इससे तुम्हें कभी भी फाइनल आंसर लिखते समय गलती नहीं होगी। जितना ही प्लान्ड वे में आंसर करोगे गलतियों से बचोगे। और अब ये क्वेश्चन जो कि अननोन क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले को निकालने के लिए था जिसमें एक्सपोनेंशियल टर्म आता है, इसमें एक इक्वेशन दी थी। ये भी किसी मीटिंग में 2019 में ही पूछा गया था जिसमें x डिस्टेंस था, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था और t टेम्परेचर था और अल्फा और बीटा इन दो के डायमेंशनल फार्मूले तुमको कैलकुलेट करने हैं। तो हमने सबसे पहले तो इस पॉइंट को यूज़ किया कि एक्सपोनेंशियल यानी e की पावर
उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो जो पावर है वो डायमेंशन लेस होगी। यहाँ से हमने अल्फ़ा की डायमेंशन निकाली, अल्फ़ा को एक साइड में रखा और बाकी सारी क्वांटिटीज़ को दूसरी साइड में ले गए। डिस्टेंस और टेम्परेचर ये दो तो हमें नोन है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आपको ये याद करना पड़ेगा कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, उसके एक्सप्रेशन में 3/2 kT, वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। अब K की डायमेंशन निकालने के लिए बाकी सारे टर्म्स को राइट साइड में ले आओ। 3/2 डायमेंशन लेस है, तो हमें मतलब है एनर्जी के डायमेंशन अपॉन टेम्परेचर के डायमेंशन से। हमने एनर्जी का डायमेंशन लिखा, टेम्परेचर का डायमेंशन लिखा और K का डायमेंशनल फार्मूला निकाल दिया। अब K के डायमेंशनल फार्मूले को हमने यहाँ पर लिखा। X का डायमेंशनल फार्मूला L2 हो जाएगा और टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला थीटा यहाँ पर हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला m-1 और t+2 बचा। अब वापस हम ओरिजिनल इक्वेशन पर गए और हमने देखा कि ये टर्म तो डायमेंशनलेस है, e की पावर, इससे अल्फ़ा कैलकुलेट करने के बाद आप इसको हटा दीजिए। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे f है उसका डायमेंशन अल्फ़ा और बीटा के डायमेंशंस के बराबर होना चाहिए। अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशन ऑफ बीटा शुड बी सेम एज डायमेंशन ऑफ f। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशंस को यूज़ किया और यहाँ पर हमने कहा कि बीटा की डायमेंशन होनी चाहिए फोर्स की डायमेंशन अपॉन अल्फ़ा की डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन लिखी, अल्फ़ा की डायमेंशन हमने कैलकुलेट की थी वो लिखी, सिंप्लीफाई किया और बीटा की डायमेंशंस कैलकुलेट कर ली। तो डायमेंशनल एनालिसिस आपकी कंप्लीट हो रही है इस लेक्चर के बाद और अब आप प्रैक्टिस करके अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो।